ایک بار پھر ہم ذہنی آزمائش سیزن 11 کے آڈیشن میں موجود ہیں اور آج خانپور کی ٹیم کی فائنل سلیکشن ہے، مگر اس سے پہلے ہماری ذہنی آزمائش کی جو ٹیم ہے وہ خانپور پہنچی، کس طرح وہاں آڈیشنز ہوئے جن میں سے یہ 7 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ ذہنی آزمائش کی ٹیم فیضان مدینہ خانپور میں آئی ہوئی ہے۔ کثیر اسلامی بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو اس ذہنی آزمائش کے آڈیشن دینے کے لیے آئے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے بھی اسلامی بھائی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالج اور اسکولز کے طلباء اور اسٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جو ذہنی آزمائش کے لیے آڈیشن دیں گے۔ تیاری کی ہے کچھ؟ الحمدللہ تیاری سوچ کر آئے ہیں جی، مقابلہ کرنا ہے، انشاءاللہ آگے جانا ہے، کہاں تک جانا ہے؟ فائنل تک۔ بھی آپ ذہنی آزمائش سیزن 11 کا آڈیشن دینے کے لیے آئے ہیں تو تیاری کر لی؟ کہاں تک جائیں گے؟ فائنل تک انشاءاللہ۔ الحمدللہ جو ذہنی آزمائش کے سیزن جو سلسلے ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے، علم دین حاصل کرنے کا بہترین یہ موقع ہے۔ آئیے آڈیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہمارے اس کاروان کا حصہ بنتا ہے۔ خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھال تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھال تجھ کو علم ہے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رفیق بن شبیر احمد۔ اچھا، وہ کون سی اذان ہے جس کا جواب نہیں دیا جائے گا؟ جو جمعہ کے دن خطبہ کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کا جواب نہیں دیا مدنی جاتا۔ چینل کے ناظرین بہت سوں کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا، جو خطبے کے لیے اذان دی جا رہی ہوتی ہے نا اس کا جواب زبان سے نہیں دینا، دل کے اندر وہ جواب دے سکتے ہیں۔ امین الامہ کا لقب کس صحابی رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا تھا؟ ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جواب درست ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ آپ کا نام؟ محمد مرید حسین اتاری۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے ہجرت کے واقعے میں نا، اس کے دوران، تو اس وقت ایک صحابی تھے جو بکریوں کا دودھ لا کر دیا کرتے تھے ان دونوں حضرات کو، وہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا ماشاء اللہ، حضرت عامر بن فہیرہ کون تھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن، اے بہار پھرتے ہیں، ایک دو شعر اور سنا دے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن، اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ظہور، کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ اولا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی کا نام بتائیں۔ زبیر بن عوام۔ سبحان اللہ، تیاری کی تھی ماشاءاللہ آپ نے؟ اچھا کیا بات ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ہجری میں کتنی برس کی عمر پا کر اور کس جنگ میں شہید ہوئے؟ 93 برس عمر پائی، 80 ہجری میں، اور جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ چلیں جی اب آتے ہیں اعلان کی جانب کہ یہاں سے ہم نے کنہیں سلیکٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کر دوں کہ کچھ تو آگے جانے والے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جانے والے ہیں، تو جو پیچھے رہ جانے والے ہیں انہوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اگر اچھی نیتیں ہوں گی، اخلاص ہوگا، اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ برکتیں ضرور ملیں گی۔ اور ابھی سیزن 11 ہے، انشاءاللہ 12ویں کی نسبت سے جو ہے وہ 12واں سیزن بھی ہوگا، تو جو اس سال رہ جائیں گے انشاءاللہ اگلے سال کوشش کریں گے تو انشاءاللہ چل کراچی بھی ہو سکیں گے، کراچی ہمارے ساتھ آ سکیں گے اور وہاں شامل ہو سکیں گے۔ تو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اس سال نہیں ہوئے تو نیکسٹ ایئر بھی راہیں کھلی ہوں گی۔ تو ناموں کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ پہلا نام
मंजूर अहमद वल्द बशीर अहमद, मोहम्मद शफीक ओवैसी वल्द रहीम बख्श, राजा अहमद इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार मोहम्मद। जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म। जी माशाल्लाह, आपने देखा नाजरीन के कितनी तादाद में इस्लामी भाई आया और उसमें माशाल्लाह ये सेलेक्ट होकर आज मुल्तान पहुँचे हैं। तो आइए अब इनसे सवाल जवाब करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़हूर। नबी पाक की उन शहजादी का नाम बताएं जिन्हें खातून जन्नत कहा जाए। हज़रत फ़ातिमा। इनके दो शहजादों के नाम बताएं। हज़रत हसन, हज़रत इमाम हुसैन। हसन और हुसैन को लफ्ज़ को मिलाकर भी कुछ कहा जाता है ना? हसनैन। हसनैन। कलाम कौन सा याद है आपको? वो सुएल अज़ार फिरते हैं। मुरीद हुसैन अत्तारी। बच्चे की अजान या अजान नमाज के अलावा कोई अजान दी जाए तो उसका जवाब दिया जाएगा? अजान नमाज के अलावा दीगर अजानों का जवाब भी दिया जाएगा। मसलन बच्चे की विलादत के बाद के अजान का भी जवाब दिया जाएगा। सबसे अफजल पहाड़ कौन सा है? तूर पहाड़। सबसे अफजल चौपाया कौन सा है? घोड़ा। अच्छा, कलाम कौन सा याद है? वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं और उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो कमाल हुस्न हुजूर है। मैं निसार तेरे कलाम पर। मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अहमद इफ्तिखार अत्तारी। अच्छा माशाल्लाह, क्या करते हैं हुजूर आप? मेरा तो प्रॉपर्टी का कारोबार है वैसे। नमाज जनाजा बालिग मर्द की दुआ सुनाएंगे? जी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मज़ार कौन से कब्रिस्तान में? जन्नतुल बकी में। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में कितने सहाबा इकराम? 10,000। कम व बेश? कम बेश 10,000। कोई क्यों पूछे? कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शायद 1000 फिरते हैं। 15 साल का तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा ना, 17-16 साल से ऊपर के सिलेक्शन होंगे। माशाल्लाह आप आए, बड़ी अच्छी बात है। और आपने इसमें आपके वालिदैन को भी खुशी हो, आपके असातिज़ा को भी खुशी हो कि आपने ये जो पेपर दिया इसमें 50 में से 50 नंबर आपने हासिल किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़हीन हैं, लेकिन बेटा अभी आपको 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद अत्तारी। राशिद भाई, आपने सिद्दीक अमीर अल मोमिनीन का लक़ब लिखा, सिद्दीक और अतीक। जी। ठीक है ना? एक आला हज़रत का शेर है, इसमें अतीक ला आला हज़रत ने इस्तेमाल किया है, वो शेर याद है आपको? नहीं, वो फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तज़ा से अतीको उमर को खबर ना हो। अगर वालिदैन खिलाफ शरा कोई हुक्म दें उसके बारे में क्या होगा, माना जाएगा? अगर खिलाफ शरा हुक्म दे तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। मोहम्मद रफ़ीक बिन शब्बीर अहमद। माशाल्लाह। रफ़ीक भाई, औकात मकरूहा कितने और कौन कौन से हैं? औकात मकरूहा 3 हैं। नंबर 1 तुलुए आफ्ताब से लेकर 20 मिनट बाद तक, और नंबर 2 है गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट बाद 20 मिनट पहले, और नंबर 3 है निस्फुन नहार यानी दाहवा कुबरा से लेकर ज़िवाले आफ्ताब तक। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गोर की शबतार है, तेरी ही जानिब पर उठती है हर आसी की नज़र, एक जाने बेखता पे 2 जहां का बार है। इसका मक्ता सुनाएं। गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रज़ा से बोस्तां, क्यों न किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अत्तारी है। मैं दर्जा खामसा में जामियातुल मदीना समरसट्टा में पढ़ता हूँ। समरसट्टा में पढ़ते? समरसट्टा में कौन से बड़े बुजुर्ग हैं? खान का शरीफ है, वहाँ ख्वाजा मुहक्किमुद्दीन सिरानी रहमतुल्लाह अलैह। समरसट्टा लोग जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं, सिरानी सरकार के लिए जाते हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, दो या डबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी। इसका मक्ता सुनाए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बारी है खानपुर की टीम का अनाउंस करने की। बेहतरीन इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए और सच्ची बात है कि हमें एक अच्छा टफ कंपटीशन इन्होंने दिया। जो 4 इस्लामी में सेलेक्ट हुए हम उनके नाम हम ऐलान करेंगे। मोहम्मद मुरीद हुसैन, आगे आइए। राजा अहमद इफ्तिखार, मोहम्मद रफ़ीक वल्द शब्बीर अहमद और मोहम्मद सकलैन अत्तारी वल्द खादिम हुसैन। माशाल्लाह ये चारों माशाल्लाह कराची के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और आपके आने जाने का खर्च हमारे ज़िम्मे होगा और इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलसिला
कब है और आपने भरपूर तैयारी के साथ आना है और अपने खानपुर का नाम रोशन करना है। खानपुर का खोया तो मशहूर है, ऐसा भी हो जाए कि खानपुर की टीम भी मशहूर हो जाए। देखना ये है, यहाँ तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बराह रास्त मुकाबलों में जब सारी दुनिया इन्हें बराह रास्त देखेगी उस वक्त इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। इन चारों इस्लामी भाइयों के जो निगरान होंगे वो मोहम्मद रफ़ीक होंगे और रफ़ीक मिलके इंशाअल्लाह रफ़ाकत के साथ टीम को तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरी चैनल के नाजरीन, ज़ैनी आज़माइश की सीज़न 11 के ऑडिशन जारी है और पहले हमारी मदरी चैनल की मजलिस रहीम यार खान पहुंची और वहाँ से कुछ इस्लामी भाई सेलेक्ट किए गए और अब उनका फाइनल ऑडिशन आज फैज़ान मदीना मुल्तान शरीफ में हो रहा है। इससे पहले कि अब फाइनल ऑडिशन की तरफ चलें, आपको दिखाते हैं रहीम यार खान में जब हमारी मजलिस हमारी टीम पहुंची तो वहाँ क्या हुआ। कशिफ जो आया दायरा इल्म में, हुआ वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा इल्म में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। जी, आज हम रहीम यार खान में आए हुए और खानपुर के अंदर हमारा ये ऑडिशन का और टेस्ट का जो है वो सिलसिला हुआ ज़ैनी आज़माइश सीज़न 11 का। लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे शुरू करें फिर ऑडिशन का और ये टेस्ट का मरहला। जी, कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ैनी आज़माइश सीज़न 11 के रहीम यार खान ऑडिशन के सिलसिले में रिटन टेस्ट का मरहला हो चुका है और अब कॉपीज़ चेक हो रही हैं। कॉपीज़ चेक होने के बाद फिर नताइज का ऐलान होने जाएगा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़ैनी आज़माइश सीज़न 11 के ऑडिशन जारी हैं। रहीम यार खान में अभी रिटन टेस्ट हुआ, पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जो कामयाब हुए और आगे आए अब उनका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इंटरव्यू होगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ी बत्तारी है। जो शरण मुसाफिर होता है वो कब बनता है, कितने किलोमीटर उसकी मुसाफिर? शरण मुसाफिर वो है जो 57.5 मील यानी 92 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए अपने घर से निकला हो। सवाल करके चाबी इल्म की कहा गया इसे, कहा गया सवाल कर सवाल आधा इल्म है, कहा गया सवाल कर सवाल आधा इल्म है। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान में हमने टेस्ट लिया। यहाँ पे बहुत सारे आशिकाने रसूल की तादाद जमा थी। रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद इंटरव्यूज़ हुए। अभी जो है वो आखिरी घड़ियाँ आ चुकी हैं, तो दिलों को थाम लीजिए। तो मैं अभी हमारे सैयद वकार शाह साहब को माइक देता हूँ कि वो इन खुश नसीब इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस करें। मोहम्मद शाहज़ेब वल गुलाम यासीन। हुआ वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में, मिटे अंधेरे ज़न्नो शक। मजहर तारिक वल तारिक जावेद। मिटे अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा इल्म में, इल्म नूर है। अब नाम आ रहा है मोहम्मद सोबान अत्तारी। जो इल्म से हो
सिर्फ बुलंदियों से जा मिले अब नाम है मोहम्मद ताहिर सईद अत्तारी। से जा मिले उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में उठा कलम। ज़ैनी आज़माइश सीज़न 11 की टीम यहाँ रहीम यार खान आई और फाइनली हमने अपने साथ 8 इस्लामी भाइयों को चूज़ किया है। अब ये यहाँ से मुल्तान जाएंगे और वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी जो रुकने शुरा हैं वो तशरीफ़ लेकर आएंगे और फिर वहाँ भी जो इंटरव्यू वगैरह का सिलसिला होगा और उसके बाद फाइनली 4 इस्लामी भाई हमारे साथ आगे कराची जाएंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। चाहे ज़िंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, अगर डूबे कश्तियाँ न डूबता ये इल्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। फजर की अजान में कुल कितने कलमे हैं? 17 कलेमात हैं। आप ये इरशाद फरमाइए कि वालिदा के पाँव चूमने के हवाले से हदीस पाक में क्या फजीलत आई है? वालदा के पाँव चूमने से के हवाले से यह कि गोया उसने जन्नत की चौखट को चूम लिया। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो। क्या नाम है आपका? ज़ुहैब इकबाल। ज़ुहैब इकबाल भाई, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ख्वाजाफी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान से। माशाअल्लाह। ये बताएं वो कौन से सहाबी हैं जो 4 पुश्तों के सहाबी हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक वो अजीम हस्ती है कि जिनके वालिद भी सहाबी, वो भी सहाबी, उनके बेटे भी सहाबी, उनके पोते भी सहाबी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम बताएं। जाबिर मेरा खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह तारिक। क्या करते हैं आप? जनाब दर्जा साबिया में ये दर्स निज़ामी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ इंटर कर लिया है और तंजीमी जिम्मेदारी है तवीज़ात अत्तारिया की। ज़ैनी आज़माइश में आए हैं मोहतरम इसलिए कि यहाँ पर एक तो फ़र्ज़ उलूम कोर्स इसमें काफ़ी हिस्सा होता है फ़राइज़ उलूम का, और वो सुनने से इतना याद नहीं रहते जितना खुद याद करें और दोबारा सुने तो वो बहुत ज़्यादा ही याद रहते हैं। और फ़राइज़ सीखने के लिए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को जो हुक्म दिया गया कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करें, इसलिए कि मैं अगर कोई ऐसी बात कहता हूँ कि कोई इस्लाम भाई सुनकर वो मेरी बात पर अमल कर लेता तो मुझे भी सवाब होगा। हर चरागे मज़ार पर कुदसी, कैसे परवान नवार फिरते हैं, मुजदाबाद आसियों शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत मुजरिमो ज़ाते खुदा गफ्फार है, गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, नूर का तड़का हो प्यारे गौर की शब्तार है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब अत्तारी है। ये बताएं कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बक़रा है। सबसे छोटी कौन सी है? सूरतुल कौसर। 30वें पारे की पहली सूरत कौन सी है? सूरतुन नबा। बेटा आप ये बताइए कि अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? अशरा मुबशरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुबान अत्तारी। क्या करते हैं सुबह? जामिअतुल मदीना में सानिया दर्जे में पढ़ते हैं। दूसरे दर्जे में पढ़ते हैं। कौन से जामिया में? जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा रहीम यार खान। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक अजीम शान वाक़या हुआ, वो क्या था? फील का वाक़या था। फील किसको कहते हैं? हाथी को। इस वाक़े पर कुरान पाक की एक सूरत है, वो कौन सी है? सूरह फील है 30वें पारे में। मिस्कीन किसको कहते हैं? मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास कुछ न हो, यहाँ तक कि बदन छुपाने के लिए और खाने पीने के लिए भी मोहताज हो। सैफुल्लाह का लक़ब किन सहाबी का है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अमीनुल उम्मत का लक़ब किन सहाबी का है? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह। और शेर खुदा किन्हें कहा जाता है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। ये बताएं, एक सहाबिया थी जो मुस्तजाबुद दावात थी, वो कौन सी? हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश। मुस्तजाबुद दावात किसे कहा जाता है? वो जिसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जब जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दी। वो कौन सी शख्सियत है जो 40वें मुसलमान हुए थे, जब मुसलमानों का 40 का अदद पूरा हुआ? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद।
ये बताएं कब कब गुस्ल करना मुस्तहब है? 15 मकाम है जब गुस्ल करना मुस्तहब है। अरफा के दिन और वकूफ़ अरफात, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, शब कदर, शब बरात, मजलिस मिलाद शरीफ के लिए, दीगर मजालिस खैर के लिए, मुर्दा नहलाने के बाद, और मजनून के लिए जुनून जाने के बाद, और गशी से इफाका के बाद। फसाद उम्मत के वक्त सुन्नत को मजबूती से थामने वालों के लिए क्या अजर है? प्यारे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है कि जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामेगा तो उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। नमाज का चोर किसको कहा गया? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि सबसे बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। तो अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नमाज का चोर कौन है? तो फरमाया कि नमाज का चोर वो जो नमाज के रुकू और सुजूद पूरे ना करे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए का मक्ता सुनाए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, अब बारी है रहीम यार खान की। जनूबी पंजाब की एक और टीम आज सेलेक्ट हो रही है। इस बार जनूबी पंजाब से काफ़ी टीम्स हैं। अब देखना यह है कि बराह रास्त मुकाबलों में इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। मोहम्मद सोबान अत्तारी वल्द अशफाक अहमद, माशाअल्लाह। मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद ताहिर सईद अत्तारी वल्द सईद अहमद अत्तारी। और मोहम्मद सैफुल्लाह वल्द शेर मोहम्मद खान। तो ये माशाल्लाह 4 इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए हैं। अब इनका कैप्टन अनाउंस करेंगे, इनका निगरान कौन होगा। तो माशाल्लाह इस टीम के जो कैप्टन होंगे, निगरान होंगे, वो मोहम्मद सैफुल्लाह होंगे। और ये इन चारों इस्लामी भाई की मिलकर तैयारी भी करवाएंगे और यही फैसला करेंगे कि पहली बारी में कौन 3 वहां पर आएंगे तैयारी देखकर। और जब ये बेहतर समझेंगे तो अगर किसी एक को बाद में जाके चेंज भी करना हुआ तो ये कर सकेंगे। बहरहाल चारों तगड़ी तैयारी करके आए और देखते हैं कि रहीम यार खान की टीम कहां तक जाती है। जनाब, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंधेरे ज़न्नो शक के शागरा है इल्म में, इल्म नूर है, इल्म नूर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपका पसंदीदा प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश का सीज़न 11 होने जा रहा है और इसी सिलसिले में हम ऑडिशन के लिए निकले हुए हैं। ऑडिशन मजलिस मुख्तलिफ शहरों का सफ़र करती हुई आज पहुंची है सक्खर में। जो इल्म से हो मुतसिफ, बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। जी, मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सीज़न 11 ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन का सिलसिला जारी है। पहला मरहला था तहरीर कीजिएगा। उसमें से कई इस्लामी भाइयों ने सही जवाबात दिए, लेकिन उनमें से हमने सेलेक्ट किए 21 इस्लामी भाइयों को। अब 21 इस्लामी भाइयों को यहाँ बुलाया जाएगा, उनसे सवालात किए जाएंगे और फिर फैसला करना होगा कि कौन हमारे साथ बाबुल मदीना कराची जाता है। सवाल करके चाबी इल्म की कहा गया इसे। इनामुल्लाह भाई, इल्हाम किसे कहते हैं? वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं। इस कलाम का मक्ता सुना दीजिए। मोहम्मद उवैस भाई, कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखने का अमल कब से है? कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखने का अमल सहाबा किराम और तबा ताबीन से। अच्छा, ये बताइए कि सूरह शिफा ये किस सूरत को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? सूरह फातिहा को कहा जाता है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सूरह फातिहा ये बायस शिफा है। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। हजरत वहाब हसद की तबाहकारियों से मुताल्लिक क्या फरमाते हैं? नेकी करके कबूलियत की दुआ करना किसकी सुन्नत है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جی نہیں، آپ کا جواب بھی غلط ہے. اعلیٰ حضرت کے کلام کے کوئی بھی 4 نام بتا دیں. وہ کمال حسن حضور ہے. ٹھیک ہے، ایک کلام. وسوء لال ذات. 2 کلام. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ. آپ سے یہ سوال ہے کہ مسجدوں کی تعمیر کرنا کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اللہ اللہ، لگتا ہے تیاری مضبوط نہیں ہوئی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا سب کرے تھے باقی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ شاہنواز اتاری. شاہ نواز اتاری. کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں داخلہ ہوگا؟ جی ہاں. اعلیٰ علیین سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر مرنے والوں کو ندامت ہوگی چاہے وہ نیکوکاری کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، یعنی قیامت کے دن ہر آدمی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنائیے. اس بارے میں پیارے آقا کا ایک ارشاد ہے جو آپ کو نصاب میں دیا گیا تھا. سورۃ الفاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کی ابتدا اس سورہ سے ہوتی ہے. وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے لیے برکت اور پاکیزگی کا باعث ہے؟ میرے گندے قدم اور ان کا حرم. سورہ فاتحہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حمد کا کیا معنی ہے؟ عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے؟ عبادت اور تعظیم میں فرق یہ کہ جس طرح نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت کہلاتی ہے، لیکن اسی طرح جب ہم اپنے اساتذہ کرام یا پیر و مرشد اور والدین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ عبادت کے زمرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ تعظیم کے زمرے میں آئے گا. کہاں سے آئے آپ؟ خیرپور سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. نام بتا دیجئے ایک دفعہ. نام علی شیر اتاری. علی شیر بھائی، پریشر ہے آپ پر؟ نہیں پریشر نہیں. پریشر نہیں ہے، ریلیکس ہے. تیاری کر کے آئیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 27 درجہ. جو ایک مرتبہ ایسے پڑھے گا جماعت کے علاوہ اور پڑھنے والے کو اس کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ ثواب دیا جائے گا. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام آپ سلیکٹ کریں، اس کے 4 اشعار بھی آپ سنا دیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو نہ ہو. کانٹا میری جگر سے غمے روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کریں حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. لواء الحمد کیا ہے؟ بروز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا کہ جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انسان گزر چکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بشمول. عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے حضور؟ عبادت اور تعظیم میں یہ فرق ہے کہ اگر کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرنا تو اب یہ عبادت بھی ہوگی اور تعظیم بھی. جس عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، صرف تعظیم کرنا جیسے ہم اساتذہ کی کرتے ہیں، پیر و مرشد کی کرتے ہیں. مباح کسے کہتے ہیں؟ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو. کیا ہر مرنے والوں کو ندامت ہوگی چاہے وہ نیکوکاری کیوں نہ ہو؟ جی ہاں، ہر مرنے والے کو اپنے مرنے پر ندامت ہوگی. ماشاءاللہ، بڑی خوب تیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ. نام کیا ہے آپ کا؟ سعید احمد. سعید احمد بھائی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کمبر شریف سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طاہر حسین بھائی. طاہر حسین بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں. جامعۃ المدینہ میں. ہمارے پاس وقت کم ہے، 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس ہیں تو جلدی آپ سے سوالات ہوں گے اور آپ نے جلدی اس کا ریپڈ راؤنڈ ہے، آپ کو جواب دینا ہے. شریعت کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے؟ جواب آپ نے دونوں نہیں دیا. آیت الکرسی کے کوئی 3 فضائل بیان کیجئے. کیا کعبہ کے علاوہ بیت المقدس کا بھی کبھی حج ہوا ہے؟ کعبہ کے علاوہ بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا. اللہ عز و جل کی نعمت پر خوش ہونے کا کیا حکم ہے؟ لواء الحمد کیا ہے؟
लवा अलहम्द ये एक झंडा है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन अता किया जाएगा। इसके नीचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम मोमिन उसके नीचे होंगे। खिलाफ औला ये मुस्तहब का मुकाबिल है, यानी जिसका ना करना बेहतर हो और कर लिया तो कोई गुनाह। सूरह फातिहा के नुज़ूल के हवाले से उलमा इकराम क्या फरमाते हैं? सूरह फातिहा के नुज़ूल के एतबार से एक कौल ये मरवी है कि सूरह फातिहा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, और जबकि बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि सूरह फातिहा मक्का मुकर्रमा में एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में और एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। कर मदह अहले दुवुल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 का पहला नाम जो सक्खर को रिप्रेजेंट करेंगे ज़हनी आज़माइश में, पहला नाम अली शेर अत्तारी। अली शेर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 के आप सक्खर की मेज़बानी करेंगे। आप इस तरफ तशरीफ लाइए। हुजूर आप भी इनको ये दीजिए, आप निगरान काबीना को दीजिए। निगरान काबीना माशाल्लाह अपने मुबारक हाथों से देंगे। बहुत बहुत मुबारक आपको, आप इधर ही रहेंगे। दूसरे इस्लामी भाई अल्ताफ अत्तारी हमारे जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप भी हमारे साथ कराची जाएंगे, ये कराची की आपको टिकट दी जाएगी। तीसरा नाम है सईद अहमद भाई का। सईद अहमद भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे। निगरान काबीना के हाथों से आपको मिलेगा माशाल्लाह। चौथा नाम मेहताब अत्तारी का। मेहताब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप भी हमारे साथ कराची जाएंगे और कराची में आप ज़हनी आज़माइश में अपनी टीम सक्खर को रिप्रेजेंट करेंगे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आज़माइश, जी हाँ, सीज़न 1 से लेकर सीज़न 11 तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आज सीज़न 11 के ऑडिशंस का सिलसिला जारी था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल